Hello friends, welcome back to my channel. This is Sagar Jaiswal, and today we will analyze one of the largest human resource services provider company in India, that is Teamlease Services Limited. अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इज़ 2690 CR, करंट प्राइस 1604, स्टॉक पी इज़ 22.9, एक फेवरेबल कंडीशन में है, बुक वैल्यू इज़ 572, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 12.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 12.2%. इसके कुछ की मेट्रिक्स और कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो टीमलीज सर्विसेज provides employment related services. It provides solution for staffing, recruitment, training, payroll processing and regulatory compliances. Its major business segments are general staffing, specialized staffing, HR services. The business segment, the company is a leading player in the recruitment industry, offering a range of solutions. General staffing and allied services की बात करें तो 93% in 9 months FY25 में हो चुका था versus 90% in FY22. The company offers staffing solution, temporary recruitment and payroll and NETAP, National Employability through Apprenticeship program. The segment revenue grew by 22% year on year in 9 months FY25, driven by a 16% rise in headcount. Specialized staffing services की बात करें तो 5% in 9 months of FY25 versus 8% in FY22. The company offers IT staffing and telecoms staffing solution. The segment revenue grew by 2% year on year in 9 months till 9 months of FY25. Other HR services 2% in till हम सितंबर इसको कह सकते हैं FY25 versus 2% in FY22. The company offers regulatory compliances, training, job portal, education technology and SaaS-based compliance solution. It has introduced a degree apprenticeship program to offer heads-on training to apprenticeship. The segment revenue grew by 21% year on year in 9 months of FY25. Headcount की बात करें तो जनरल स्टाफिंग में 2,99,600 as of Q3 FY25 versus 2,58,500 as of Q3 FY24. स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग में इन्होंने 6,700 as of Q3 FY25 versus 76% FY22 के कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है. डिग्री अप्रेंटिसशिप की बात करें तो 47,200 Q3 FY24 versus 43,150 as of Q3 FY24. Clientele की बात करें, the company provides HR solution to 3,900 plus employers and has hired over 23 lakhs people in the past 23 years. It serves large, medium and small clients across 3 key areas: employment, supporting 3.5 lakh associates and trainees; employability, benefiting 7.5 lakhs students; and e-workforce service, serving 1,000 employees. In FY24, top customers accounted for 43% of its total revenues. Network की बात करें तो company has a network of across 7,500 plus location in 28 states. Acquisition की बात करें तो in January 25 the company signed a SPA, is a share purchase agreement to acquire an 80% stake in Ikigai Enablers Private Limited, which can help to expand the IT staffing business in Singapore and the Middle East. It also acquired a 90% stake in TSR Dasha and 30% stake in Crystal HR in December 24. इसके हम कुछ फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को एनालाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पे स्क्रीनर पे हम इसको देख सकते हैं. तो इसकी पी अभी पिछले 2021 के बाद ये बहुत ही कम होता ये नीचे आता हुआ नज़र आता है. और हम पेयर कंपैरिजन में देखें तो पेयर कंपैरिजन में टीमलीज सर्विसेज एट द 8th लेवल, स्टॉक पीज 22.90. सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सेल्स अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो सितंबर 24 में सेल्स 2797, नाउ इज 3032, 2891 एंड 3032. इट्स ऑलरेडी हाई. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 33 से 38, 31 से 38 ऑलरेडी हाई. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 से 29 हो चुका है. नेट प्रॉफिट 25 से 28. और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इज 16.95 से 16.41 है. प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सेल्स अभी तक के ऑलमोस्ट हाई
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स ऑलमोस्ट टीटीएम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टीटीएम इज़ 151। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 124। नेट प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई इज़ 119 CR के आसपास। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 70.04% के आसपास नज़र आता है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट 0.51 से ये अभी 17 करोड़ के आसपास हो चुका है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 943। बोरोइंग्स धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अदर लाइबिलिटीज़ में देखें तो 2313 अदर लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। और कैश फ्लो की अगर बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 104 मार्च 24 में। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो माइनस में है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज़ माइनस। डेटर्स डे इनकी अगर हम देखें, डेटर्स डे मार्च 25 में 16 है। कैश कन्वर्जन साइकिल 16 करोड़ के आसपास है। वर्किंग कैपिटल 3 करोड़ के आसपास है इनके पास। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 13%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 31%। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स दे आर द कंसिस्टेंट होल्डर्स इज 31.11% टिल सितंबर 25। FIIs ने बहुत सारा माल इनका बेचा है और जो पिछले 3 साल में 37.25% से घट के 6.68% हो चुका है। DIIs ने वहीं पूरा माल भरा हुआ है 50.72% के आसपास। पब्लिक के पास 11.46% है। और इसके हम स्टॉक के हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल चार्ट पैटर्न को हम ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज कर रहे हैं और इसके ऑल टाइम हाई और लो को मार्क करें तो दिस इज़ द ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे इसने बनाया था अप्रॉक्स 21 में 5555 के आसपास। और यहाँ से स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ गिरते गिरते, अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे हमें ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो दिस इज़ द ऑल टाइम हाई ऑफ दिस चार्ट 5551। और अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करें तो लाइन ड्रॉ करते हुए मुझे ये स्टॉक अप्रॉक्स 71% डिस्काउंट पे अवेलेबल नज़र आता है। लेट्स सी आने वाले टाइम में स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। अगर इसके हम कुछ डिटेल्स को ग्रोथ पे एनालाइज करें तो अगर हम इसके करंट स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें तो करंट स्टॉक प्राइस इज 1603 के आसपास नज़र आता है। मार्केट कैप इज 26.89 बिलियन रुपीज़। 1 year प्राइस चेंज -45% CAGR है। स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म ट्रेडिंग एट 2018 प्राइस लेवल डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। बीटा 5 years में -0.07 हो चुका है। लो वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट। एवरेज वॉल्यूम अप्रॉक्स 91,000 शेयर्स के आसपास है। द स्टॉक हैज़ बीन डाउन ट्रेंड थ्रू 2025, downgraded to sell by some sources like Market Mojo due to weak technicals and financial trends. However, it shows signs of undervaluation based on book value and intrinsic value. फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करें तो टीमलीज हैड demonstrated consistent revenue growth but muted profit expansion due to thin margins and operational costs. The business is asset light. With low debt, but free cash flow has been negative recently due to investment. Compounded sale growth 90% हुआ है 10 year में, 16% 5 year में, 20% 3 year में और 14% TTM में. Compounded profit growth 13% 10 year, 24% 5 year, 3% 3 year. एनालिस्ट रेटिंग एंड टारगेट्स की बात करें तो करंट कंसेंसस जो है कंसेंसस बाई रेटिंग पे है। एवरेज 12 मंथ्स टारगेट 2283, हाई टारगेट 3827 से 3630, लो टारगेट 1720 से 2000। रिसेंट अपडेट्स, इन्वेस्टेक अपग्रेड्स टू बाय, मोतीलाल ओसवाल बाय, एमके बाय।
इफ़ यू लुक फॉर सम लेटेस्ट न्यूज़ फॉर द टीम लीज सर्विसेज की बात करें तो की लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ है. सुपर्णा मित्रा अपॉइंटेड एज MD एंड CEO एज ऑन December 4, 2025. टीम लीज अनाउंस द appointment of Suparna Mitra, former head of Titan's Watches Wearable Division, as Managing Director and CEO effective February 1, 2026. Co-founder Ashok Reddy, Manish Sabharwal will transition to non-executive role after 25 years. Chairman Narayan Ramachandra highlighted Mitra's expertise in consumer business and innovation as key for growth. This was also shared by X by media outlets and the company. Co-founder roles की बात करें तो co-founder role shift the transition emphasizes continuity while bringing the fresh leadership to drive the company's next phase, focusing on staffing, HR services, and apprenticeship. Stock and financial updates. Stock hits 52-week low. Revenue growth from specialized staffing. Trading window closures. Share surge on labor codes. और बहुत सारी इसमें न्यूज़ हमें नज़र आती हैं. If we look the technical पैटर्न ऑफ दिस चार्ट तो ये अभी 2020 के दो ये इनका 2020 का लेवल है. 2020 के लेवल पे ये स्टॉक अभी नज़र आता है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे. कंपनी के मैनेजमेंट जो चेंजेस हुए हैं December 25 में आने वाले टाइम में जब वो इफ़ेक्टिव होगा February 26 से, तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स और कुछ रिज़ल्ट आने वाले क्वार्टर्स में नज़र आएंगे. तो इसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कुछ प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट पोस्ट करेगी, जिसके बाद ये जो स्टॉक है स्टॉक अप मूव में जाता हुआ हमें नज़र आएगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ. साइनिंग आउट, सागर जायसवाल. थैंक यू.